امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیوں کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے امریکہ پابندیوں کے لیے 4 اداروں کو نامزد کر رہا ہے۔ ان میں اختر اینڈ سنس، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور روک سائٹ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ پاکستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس پر بھی پابندی عائد۔ تباہی پھیلانے والے ہتھیار۔ پاکستان نے امریکہ کی پابندیوں کو معتصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور 3 تجارتی اداروں پر پابندیاں معتصبانہ ہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد خود مختاری کا دفاع ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ نئی پابندیاں سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتی ہیں۔ یہ پالیسیاں خطے کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کی ملکی قیادت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا ہمیں نجی تجارتی اداروں پر پابندیوں کے نفاذ پر بھی افسوس ہے۔ ماضی میں کمرشل اداروں کی اسی طرح کی فہرستیں شکوک و شبہات پر مبنی تھیں۔ اس طرح کا دوہرا معیار حکومتوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ فتنۃ السیاست کی پرتشدد کارروائیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے ایکس پر پیغام لکھا فتنۃ السیاست اب ایک اور ملک اور قوم مخالف اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہونے کی ضد کر رہا ہے۔ سول نافرمانی کی بچکانہ اور دشمنانہ خواہش پوری کر لیں لیکن NRO پھر بھی نہیں ملے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی یا نہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل مکمل، فیصلہ محفوظ۔ فیصلہ 23 دسمبر پیر کو سنایا جائے گا۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران وکیل بانی پی ٹی آئی سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ یہ سیاسی انتقام کا ریفرنس ہے۔ ریفرنس مخصوص جوڑے کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا۔ ملزمان کی جیب میں ایک ڈھیلا بھی نہیں گیا۔ بشرا بی بی سیاسی خاتون نہیں، نہ ہی پبلک آفس ہولڈر ہیں۔ جتنے پیسے آئے موجود ہیں۔ خورد برد نہیں ہوئی، ٹرسٹ چل رہا ہے۔ نیب وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا نیب اپنے ریفرنس سے پیچھے نہیں ہٹا، نہ ہی الزام کے بارے میں موقف بدلا۔ کیا مجبوری تھی کہ کابینہ سے منظوری کے لیے رولز آف بزنس کی خلاف ورزی کی گئی؟ ہمارا موقف ہے بانی پی ٹی آئی نے غیر قانونی سیٹلمنٹ کی منظوری دی۔ بشرا بی بی نے وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے کے ناطے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی فراگوگی سے تعلق سے انکاری نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے گئے۔ 27 فروری کو فرد جرم عائد ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے بڑا دکھ ہوا ایسا لگ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو پیر کو روز سزا دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کے بچوں کے لیے کام کرنے والے کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ طلبہ کو مفت تعلیم کے لیے القادر یونیورسٹی کا منصوبہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کہہ چکے جو پیسے دیے تھے وہ شاید چوری کے ہوں۔ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں پر چل رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر پہنچ گئے۔ مصر کے وزیر برائے پبلک بزنس سیکٹر اور دیگر حکام نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم قاہرہ میں ہونے والی D8 ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قاہرہ میں D8 ورثہ کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے۔ لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سے ملاقات۔ وزرائے خارجہ کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان کے مطابق 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ رہنماؤں کا تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نان فائلرز پر 800 cc سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت کی نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری مکمل۔ ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائلر بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کرا سکیں گے۔ ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے۔ نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ ایسے افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے۔ حکومت غیر رجسٹرڈ افراد کی پراپرٹی کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کرانے پر بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔
मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे को संजीदगी से ले रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ICC इजलास से खिताब। कहा तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। शरह सूद मुसलसल 5वीं बार कम हुई। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़जाना ने करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त करार दे दी। बोले कारोबारी बरादरी के एतमाद में नुमायां इजाफा हुआ है। मुआशी इस्तेहकाम के साथ शरह नमू में इजाफा तरजीह है। पुरुम्मीद हूँ मुआशी बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क? ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। इंटरनेट स्पीड में कमी पर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली में तनकीदी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा X हो Y या Z, पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। आपको जो करना है जल्दी करें, मैं नहीं चाहता बात वजीर आजम तक जाए। मेरा सवाल है फुल स्पीड में इंटरनेट कब चलना शुरू होगा? IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। शादिया मरी बोली फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए हैं। हुकूमती इक़दामात की सूरत हाल इंतहाई मज़ा का खेज है। मुल्क में इंटरनेट बंद है। डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, मुल्क को साइबर हमलों और डेटा लीक से बचाना है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा का पीपल्स पार्टी को ऐवान में जवाब। कहा मेरे हाथ में कोई बटन नहीं कि इंटरनेट बंद कर दो। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। दावा किया कि X का इस्तेमाल मुल्क में 2% से भी कम लोग करते हैं। X की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद होता। हम इनकार नहीं करते, इंटरनेट यूजर स्पीड में फ़र्क पड़ा है। हमारे खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा के जवाब पर अदब इत्मीनान का इजहार। कहा इतने मौजूद अरकान ने इंटरनेट की शिकायत की है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी आनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने की पेशकश। कहा हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं PTI वालों के बयानात में संजीदगी नज़र नहीं आती। PTI वाले बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा तहरीक इंसाफ की इस वक्त कमांड कोई नहीं है। एक कमांड अडयाला जेल और एक पेशावर बैठी हुई है। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही है। PTI की मुज़ाकराती टीम हुकूमत से पहले बानी PTI से मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म की वापसी पर मुज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। PTI मामलात को समझने में आ रही है। अगर इनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है तो अपना शौक पूरा कर लें। सिविल नाफरमानी की तहरीक से इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। सियासी मामलात को डायलॉग के जरिए ही हल किया जा सकता है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत को तैयार हैं। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास की जारी एलामी के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। वो चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का स्पीकर की पेशकश का खैर मकदम। कहा स्पीकर हाउस के कस्टोडियन हैं, उनकी तरफ से पेशकश मुस्बत अमल है। मुज़ाकरात के लिए फ़िलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हुकूमत संजीदा ना हुई तो अपना नुकसान करेगी।
भारतीय बहरिया की स्पीड बोट की मुसाफिर फेरी को टक्कर, 13 अफराद हलाक। कश्ती में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन करके 99 मुसाफिरों को बचा लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 10 शहरी और 3 भारतीय बहरिया के एहलकार शामिल। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में पुरस्कार ड्रोन की परवाजें। हुकाम अब तक इत्मीनान बख्श जवाब देने में नाकाम। शहरियों में खौफ व हरास। अमरीकी सदर का कहना है कि मामले का जायजा ले रहे हैं, खतरे की कोई बात नहीं। गैर मुल्की मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला। तहकीकाती इदारे के मुताबिक इम्कान है कि लोगों ने सैटेलाइट या ग्लाइडर को ड्रोन समझ लिया हो। नवमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए हेयर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में ट्रंप छोटे बालों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोलो शर्ट पहनी हुई है और हाथ में सुर्ख टोपी है। कमरे में दाखिल होते ही सवाल किया, क्या सब लोग मजा कर रहे हैं, और फिर हंसते हुए कहा, क्या सब रिपब्लिकन हैं? आयरलैंड की पार्लियामेंट में पहली बार खातून स्पीकर मुंतखब। आज़ाद उम्मीदवार वेरोना मर्फी ने फियाना फील और सिन फेन जमातों के उम्मीदवारों को शिकस्त दे दी। इंतखाबात में फियाना फील, सिन फेन और फाइन गिल ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं। कांगो में कश्ती उलटने से बच्चों समेत 25 अफराद हलाक। कश्ती में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। दर्जनों लापता है। मकामी हुक्काम के मुताबिक हादसे की वजह कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद थे। कश्ती में मुसाफिरों के साथ सामान भी लदा हुआ था। ओशियाना में वाक़े मुल्क वनावातों में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। 200 अफराद जख्मी हैं। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। इमारत ज़मीन बोस, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लैंड स्लाइडिंग, बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़। गुज़श्ता रोज़ दारुल हुकूमत पोर्ट वेला के करीब 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मेट्रो, वैंकूवर, फ्रेंजर वैली और साउथ गल्फ आइलैंड्स में 70 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं शुमाली साहिल से टकराएंगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई।